Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. We are now familiar with all the three algebraic methods of solving any given pair of linear equations in two variables, and these methods are substitution method, elimination method and cross multiplication method. Also, we have completed the first three questions of exercise 3.5. Today we are going to do question number 4 from the same exercise. So here it is. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. So here some word problems have been given to us. We will be reading the question, then forming a set of equations, and then we will be solving by any of the methods. The first one is, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. So here we are talking about hostel charges and it consists of two parts. One is the fixed part or the fixed charge and the other depends on the number of days one has taken food in the mess. Now suppose one takes food for 5 days, then she will have to pay the fixed charge which everyone has to give, and then she will have to pay the cost for food for 5 days. इसी तरह से अगर किसी ने 10 days मेस में फूड लिया है तो उसे भी फिक्स्ड चार्ज तो देना ही होगा, साथ ही साथ 10 days का फूड का पेमेंट भी करना होगा. I hope it is clear. So now here two conditions have been given. One is for student A who has taken food for 20 days and the other one is student B who has taken food for 26 days. Student A is paying rupees 1000 and student B is paying rupees 1180. Now here two things are unknown to us. One, the fixed charges and the other the cost of food per day. ये दोनों ही हमें नहीं पता है तो हम शुरू करते हैं इन दोनों को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हुए. Let us begin the solution. Let the fixed charges be rupees X and the cost of food per day be rupees Y. इनको हमने X और Y से डिनोट कर दिया है. Then according to the question, hostel charges for student A, what will it be? Student A को X रुपीस तो देने ही होंगे प्लस 20 days फूड लिया है. अब हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज़ वाई. एक दिन अगर आपने खाना खाया है तो वाई रुपीज़ देने होंगे, और अगर 20 days खाना खाया है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बी रुपीज़ 20 इंटू वाई, और वी से इट 20 वाई रुपीज़. सो नाउ student A will have to pay X rupees, that is the fixed charges, plus 20 Y rupees for food, and this has been given equal to 1000 rupees. This is the first equation that we have got. Okay. Next, hostel charges for student B. Again, student B will have to pay the fixed charges rupees X, plus student B has taken food for 26 days. So the cost of food for 26 days will be 26 into Y. This means 26Y, और ये total charge, hostel charge for student B will be equal to rupees 1180. This is equation number 2. Okay. Now we need to solve these two equations and then we will get the values of X and Y and then accordingly the values of the unknowns. So let us begin. यहाँ देखिए आप x के साथ कोएफिशिएंट दोनों में ही 1 है, इक्वल है, तो हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दोनों ही इक्वेशंस को. सिंपली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस, जिससे इन दोनों x में से एक x नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 बिकॉज द नंबर्स इन इक्वेशन 2 आर लार्ज. सो सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2, we get
What do we get? Let us have a look. First we will write equation 2. From के बाद जिसे लिखा है वो पहले लेंगे. x plus 26y equal to 1180. इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. It is x plus 20y equal to 1000. और क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉटम इक्वेशन के साइन सभी टर्म्स के चेंज हो जाएंगे. प्लस से माइनस हो गए सभी के साइन और x minus x will be cancelled. Here we will have 26y minus 20y. This will be 6y. And here we get 180. सब्ट्रैक्ट करने पे 180. यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. ये हो जाएगी 180 upon 6. And this gives us the value of y equal to 30. ये मिल गई हमें y की वैल्यू. Next we need to find the value of x. So let us take a new page. Substituting y equal to 30 in equation 1. We get equation 1 is x plus 20y equal to 1000. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ अब हम x plus 20 into y की जगह लिख रहे हैं 30. This is equal to 1000. From here x plus 2 3s are 6 and 2 zeros, it will be 600 equal to 1000. X will be equal to 1000 minus 600 and this gives us x equal to 400. ये मिल गई हमें x की वैल्यू. तो x आ गया हमारे पास 400 and y is equal to 30. And now just recall what was x and what was y. We had taken x to be the fixed charges and y to be the cost of food per day. Hence we can easily write down the answer. The fixed charges is rupees 400 and the cost of food per day is rupees 30. Got it? And now you can also check your answer by placing these values in the conditions given in the question. Let us take student A. The charges for student A will be rupees 400 जो fixed है वो तो देना ही है plus student A ने 20 days food लिया है तो 20 into 30 ये हो जाएगा hostel charges for student A. Okay. Now this will be equal to 400 plus 600 and this is equal to 1000 and this is the amount given in the question. So this means our answer is right. Let us check for student B also. Student B, she will have to pay the fixed charges rupees 400 plus she has taken food for 26 days. तो ये हो जाएगा 26 into 30. This is the cost of food. Now this will be equal to 400 plus if you multiply you will get it 780 and now add it you will get it 1180 and this is the amount given in the question. This means the answer that we have found is absolutely correct. So the fair answer is still here and this is the rough work where we are checking the answer. Okay. Next we have one more part. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. यहाँ बात हो रही है fraction की और fraction में होते हैं numerator and denominator. Now here it has been said कि if 1 is subtracted from the numerator तो fraction की value हो जाती है 1 by 3 और second condition और दी हुई है हमें कि अगर denominator में 8 ऐड कर दिया जाए तो fraction की value हो रही है 1 by 4. हमें find करना है वो fraction. अब यहाँ पर numerator और denominator दोनों ही unknown है तो हम शुरू करेंगे इनको x और y मानते हुए. Let us begin it. Let the numerator and denominator of the fraction be x and y respectively. Then the fraction is x upon y. ये हो गया हमारा fraction. Now according to the question, first condition that has been given, हमारा fraction है x upon y और first condition में कह रहे हैं if 1 is subtracted from the numerator. तो अगर हम numerator में से 1 subtract कर दें
तो इसकी वैल्यू बन रही है 1/3। देखिए आप, इट बिकम्स 1/3। नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस एंड गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 से, और y यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। दिस विल गिव अस 3 into x - 1 equal to y. Again 3x minus 3 1s are 3. Open the bracket. This will be equal to y. And this gives us 3x minus y equal to 3. हमने 3 और y की पोजीशन इंटरचेंज कर दी और ये मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन। Okay, then we have one more condition given in the question, and it says that when 8 is added to the denominator, its value becomes 1/4. So let us write down the second condition also. Second condition, x upon y is the fraction, और अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू इक्वल टू 1/4। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगेन वी विल बी सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 into x will give us 4x, और यहाँ पर ये हो जाएगा y plus 8. Again 4x minus y is equal to 8. This is the second equation. अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, और यहाँ देखिए आप, y के साथ यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, तो कोएफिशिएंट्स तो इक्वल है। नाउ वी सिंपली नीड टू सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस। क्योंकि साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा और x और y की वैल्यूज निकालनी होंगी। वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2, we get, let us first write equation number 2, and it is 4x minus y equal to 8. और फर्स्ट इक्वेशन है 3x minus y equal to 3. ये लिख दी हमने दोनों इक्वेशंस। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉटम इक्वेशन में सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, अगेन प्लस से माइनस। नाउ माइनस y एंड प्लस y, दिस विल बी एलिमिनेटेड। यहाँ बच गया 4x minus 3x, दिस इज x, एंड 8 minus 3, दिस इज 5. This gives us the value of x equal to 5. यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। x की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्सटीट्यूटिंग x equal to 5 in equation 1. You can substitute it in equation 2 also. किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आंसर सेम ही मिलेगा हमें। Substituting x equal to 5 in equation 1, and equation 1 is this one, 3x minus y equal to 3. यहाँ रखने से 3 into 5, x की जगह हमने 5 रख दिया, minus y equal to 3. Now this is 15 minus y equal to 3. Interchange the positions of y and 3. ये मिल जाएगा हमें 15 minus 3 equal to y, and this is giving us y equal to 12. ये मिल गई हमें y की वैल्यू। Now x was the numerator of the fraction and y the denominator. So we can easily now write down the answer. The numerator of the fraction is 5 and its denominator is 12. Okay, and now the fraction is 5 upon 12. Got it? Also we can check our answer. Our fraction is 5 upon 12. अब ज़रा फर्स्ट कंडीशन को रिकॉल कीजिए। इसमें कहा गया था कि अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। 5 minus 1 upon 12. 5 minus 1 is 4 upon 12, and this is equal to 1 upon 3 on simplifying, and this is the same value as given in the question. Again let us consider the second case. 5 upon 12 is our fraction, और हमसे कहा गया था कि अगर डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दिए जाएं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/4।
Let us see whether we are getting it or not. 5 or 12 plus 8 is 20 and divide by 5 you will get it 1 by 4. इसका मतलब दोनों ही conditions satisfy हो रही हैं और हमारा आंसर बिल्कुल सही है. Okay? Now we move towards the next part. Here we have Yash. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट दिया और उसमें फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे थे और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क माइनस किया जा रहा था और ऐसे में यश को मिले 40 मार्क्स. और एक कंडीशन और दी गई है कि अगर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते फॉर ईच राइट आंसर, फॉर ईच सिंगल राइट आंसर 4 मार्क्स दिए जाते और फॉर ईच रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स माइनस किए जाते, ऐसे केस में यश को 50 मार्क्स मिल रहे हैं. हमें पूछा गया है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे टोटल. अब यहाँ पर 2 तरह के आंसर्स हैं, राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर, और हमें ये नहीं पता है कि कितने आंसर्स राइट हैं और कितने आंसर्स रॉन्ग हैं, तो हम उन्हीं को x और y से डिनोट करते हुए चलेंगे. लेट अस बिगिन फर्स्ट by assuming the number of right answers, let it be x and let the number of wrong answers be y. अब x answers right है और y answers wrong है, तो total number of questions कितने हो जाएंगे? The total number of questions in the test will be x plus y. दोनों का sum, जो answers right है plus जो answers wrong है, उतने ही तो questions हुए ना टेस्ट में, so it will be x plus y. Now, according to the question, total marks obtained according to the first condition. देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन में 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं फॉर ईच राइट आंसर और हमने राइट आंसर्स दिए हैं x और हर राइट आंसर के 3 मार्क्स हैं, तो x राइट आंसर्स के कितने मार्क्स होंगे? Obviously, we will be multiplying 3 and x. This will be equal to 3x. और इसी तरह से फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड, तो हमने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं y नंबर ऑफ आंसर्स आर रॉन्ग और फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज बीइंग डिडक्टेड, तो y नंबर ऑफ आंसर्स के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? 1 into y एंड दिस विल बी इक्वल टू y इटसेल्फ. तो यहाँ हमें फर्स्ट केस मिल रहा है, राइट आंसर्स के मार्क्स हैं 3x और रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स हैं y और रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स तो माइनस होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे -y और तब यश को मिल रहे हैं मार्क्स इक्वल टू 40. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन से एक और इक्वेशन बना सकते हैं. द सेकंड कंडीशन सेज फॉर ईच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आर बीइंग गिवन. हमारे राइट आंसर्स हैं x और हर एक के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 4 into x. दिस मीन्स 4x मार्क्स फॉर राइट आंसर्स और फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 2 मार्क्स आर बीइंग डिडक्टेड. तो इसका मतलब y आंसर्स रॉन्ग है और 2 मार्क्स फॉर ईच, तो y आंसर्स के लिए कितने मार्क्स हो गए? 2 into y एंड दिस इज इक्वल टू 2y. इतने मार्क्स टोटल डिडक्ट होंगे यश के स्कोर में से. ओके, ये है सेकेंड कंडीशन. सो नाउ वी कैन फॉर्म द सेकेंड कंडीशन. This is the second case. 4x marks for right answers and 2y marks for incorrect or wrong answers, and this will be deducted. Deducted means subtracted. It will be, and this is equal to 50 marks as given in the question. And this is the second equation. देखिए आप, 50 marks in the second condition. Okay. Now we have these two equations and we will be solving these by elimination method. यहाँ देखिए आप, y के साथ है -2 और यहाँ है -1, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे y का कोएफिशिएंट बन जाए -2 और तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो वी टेक द नेक्स्ट पेज. मल्टीप्लाइंग
equation 1 by 2, we get the first equation is 3x minus y equal to 40. इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 जा 6x minus 2y equal to 80. Let this be equation number 3. इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये जस्ट अपनी हेल्प के लिए हमने लिखा था. ये हो गई इक्वेशन 3. अब आप देखिए इसमें -2, यहाँ भी -2, दोनों इक्वेशंस में साइन सेम है, माइनस माइनस, तो हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा. और इक्वेशन 3 में नंबर्स बड़े हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से. सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 3, we get, first we will write equation 3, 6x minus 2y equal to 80 और equation 2 है 4x minus 2y equal to 50. अब यहाँ पर हम बॉटम इक्वेशन की सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, यहाँ माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस. माइनस 2y प्लस 2y इट विल बी कैंसल्ड. 6 माइनस 4 दिस विल गिव अस 2x इक्वल टू 80 माइनस 50 दिस इज 30. और यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू 30 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 15. हेंस x इज इक्वल टू 15. ये हो गई x की वैल्यू. अब हमें चाहिए y की वैल्यू. Let us place it in any of the equations. Let us put it in equation number 2. Okay. Substituting x equal to 15 in equation number 1 or 2, anyone you can choose. I am taking equation 2. We get equation 2 is 4x minus 2y equal to 50 और x की जगह हम रख रहे हैं 15. यहाँ से देखिए x is equal to 15, x की जगह 15 रख रहे हैं, minus 2y equal to 50. This will be 60 minus 2y equal to 50. यहाँ से हमें मिल जाएगा 60 minus 50 equal to 2y और 10 equal to 2y and this will be y equal to 10 upon 2, this is equal to 5. This implies y is equal to 5. This is the value of y, the number of incorrect answers or wrong answers. ठीक है, x मिल गया हमें number of right answers, this is 15 और y मिल गया हमें equal to 5 which is the number of wrong answers. With this we can finally give the answer. The number of right answers is 15 and the number of wrong answers is 5 and hence the total number of questions in the test ये हो गया 15 plus 5, this is equal to 20. So 20 questions were there in the test and again you can check your answer by placing these values in the conditions given in the question. Okay, this I leave up to you. Next we have one more part. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Now here two places have been given, place A and place B. प्लेस ए से भी एक कार स्टार्ट हो रही है और उसी समय पर प्लेस बी से भी एक कार स्टार्ट हो रही है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स. अब यहाँ पर दोनों ही कार्स के लिए दो केसेस दिए हुए हैं. फर्स्ट केस, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. फर्स्ट केस तो ये हो गया, तब वो दोनों कार 5 आवर्स में मीट कर रही हैं. और सेकेंड केस दिया है इफ द कार्स ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर. ये हो गया सेकेंड केस. लेट अस कंसिडर विद द हेल्प ऑफ वन फिगर. वी हैव टू प्लेसेस. लेट दिस बी प्लेस ए एंड दिस बी प्लेस बी. ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है
और इनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। एक कार प्लेस ए से स्टार्ट हो रही है और उसी समय पर एक और कार प्लेस बी से स्टार्ट हो रही है और हमसे इन कार्स की स्पीड पूछी है। दोनों ही अननोन है, तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस बी बी y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड ले ली हमने, डायरेक्शन देख लिया। अब हमसे कहा गया है कि 5 आवर्स के बाद ये दोनों कार्स एक जगह पर जाकर मिल रही हैं। लेट अस सपोज दैट दीज टू कार्स आर मीटिंग समवेयर हियर एट दिस पॉइंट आफ्टर 5 आवर्स। तो अब आप देखिए 5 आवर्स में इस फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये कार 5 आवर्स में इस पॉइंट पर पहुँच रही है और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप देखिए यहाँ पर इस कार के लिए जो प्लेस ए से स्टार्ट हो रही है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर और टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। 5 आवर्स में ही तो दोनों कार्स आपस में मिल रही हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसी समय में जो कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और ये डिस्टेंस कैसे देंगे हम? अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज y एंड टाइम इज अगेन 5 आवर्स, सो दिस डिस्टेंस इज 5y किलोमीटर्स एंड दिस डिस्टेंस इज 5x किलोमीटर्स। तो ये हो गया वो डिस्टेंस जो कार स्टार्ट हो रही है प्लेस ए से, उसके द्वारा तय किया हुआ डिस्टेंस, और ये वो डिस्टेंस है जो कार बी प्लेस से स्टार्ट हो रही है, उसने ये डिस्टेंस तय किया है। और अब आप इन दोनों में क्या रिलेशन देख रहे हैं? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? इट इज 100 किलोमीटर्स। आप देखिए दिस माइनस दिस डिस्टेंस, इट इज 100 किलोमीटर्स। तो हमारी यहाँ से पहली इक्वेशन बनती दिख रही है और वो क्या है? 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 20। समझ रहे हैं आप? फिर हमें सेकंड केस दिया है जब दोनों ही कार्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। लेट दिस बी प्लेस ए एंड दिस बी प्लेस बी और इनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स और कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से भी एक कार स्टार्ट हो रही है। इसकी स्पीड हमने x ले ली और इसकी y। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो दोनों 1 घंटे बाद बीच में कहीं मिल रही हैं। लेट अस सपोज कि वो दोनों कार्स इस पॉइंट पे कहीं मिल रही हैं। तो ऐसे केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए, ये डिस्टेंस हो गया जो इस कार ने कवर किया है। और ये कैसे मिलेगा? अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 1 आवर, सो इट विल बी 1x और सिंपली x किलोमीटर्स। इसी तरह से इस कार ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में और ये कैसे मिलेगा? अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है y और टाइम है 1, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 1y। दिस मीन्स y किलोमीटर्स एंड दिस इज x किलोमीटर्स। और अब आप देखिए दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों का सम हो रहा है ये 100 किलोमीटर्स। So x plus y is equal to 100. So this is the first case when they are moving in the same direction, and this is the second case when they are moving towards each other. I hope both the cases are clear to you. Now we will be presenting it in a fair way. We take the next page. Yes. Let the speed of the car starting from place A be x kilometers per hour. And let the speed of the car starting from place B be y kilometers per hour. Then according to the question, if the cars travel in the same direction, तब हमने देखा था कि distance covered by the car starting from place A minus distance covered by the car starting from place B, इन दोनों के बीच में difference आ रहा था 100 किलोमीटर्स का, as you can see from here. Then we have a simplified form x minus y equal to 20. ये है हमारी first equation. Then case second, if the cars travel towards each other, इस case में
distance covered by the two cars, their sum is coming equal to 100 kilometers, and this is the second equation. Now simply we need to solve these equations. और आप देखिए ये बहुत easy है, माइनस वाई प्लस वाई ईजीली कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. लेट मी मेक सम स्पेस. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get, let us add. देखिए आप ऐड करने से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से मिलेगा 2x और यहाँ पर 20 प्लस 100 इट विल बी 120. दिस गिव्स अस x इक्वल टू 120 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 60. सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई इक्वल टू 60. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. How we will find it? Substitute it in any of the equations. हम equation 2 में रखेंगे अगर, तो हमें y की वैल्यू भी easily मिल जाएगी. Substituting x equal to 60 in equation 2, we get x की जगह यहाँ हम रख रहे हैं 60 प्लस y इक्वल टू 100 इस इक्वेशन नंबर 2 में. यहाँ से y की वैल्यू आ गई 100 माइनस 60 एंड दिस गिव्स अस y इक्वल टू 40. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड x इज द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस A, वो हो गई 60 किलोमीटर्स पर आवर, एंड y इज द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस B and this is 40 kilometers per hour. Now we need to simply write the final answer. Speed of the car starting from place A is 60 kilometers per hour and the speed of the car starting from place B is 40 kilometers per hour. और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं by placing these values in the conditions given. Okay. Next we have one more question. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Now here one rectangle has been given and it has been said that if its length and breadth are changed according to the condition given in this question. ये है first condition और यहाँ हमें दी हुई है second condition. ऐसे अगर length और breadth change करें तो area में भी कुछ change आता है. हमें इसके dimensions निकालने हैं. rectangle के dimensions का मतलब length and breadth of the rectangle. तो हम मान लेते हैं कि length है x और breadth है y units. तो एरिया कितना हो जाएगा ये बीच में? इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एक्स वाई विल बी द एरिया देन. और अब हम इक्वेशंस बनाएंगे इन कंडीशंस के बेसिस पर और फिर उनको सॉल्व करेंगे. लेट अस टेक हियर, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट्स. देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इट विल बी xy स्क्वायर यूनिट्स. ये तो आप समझते ही होंगे. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब केस 1 ले रहे हैं हम. फर्स्ट केस में लेंथ में देखिए क्या चेंज आ रहा है. लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3. तो लेंथ अभी है x और बाय 5 यूनिट्स ये रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब x माइनस 5, और ब्रेड्थ हो रही है इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स और 2. लेट मी हैव अ लुक. बाय 3 यूनिट्स. ओके, ये हो गई हमारी नई ब्रेड्थ. दिस इज द न्यू लेंथ x minus 5 units and this is the new breadth y plus 3 units. And now what will be the area? It will be length into breadth. Length है x minus 5 और breadth है y plus 3. ये हो गया हमारा नया एरिया. और इसमें भी हमें एक चेंज दिया हुआ है. The area gets reduced by 9 square units. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं
एरिया हमारा पहले कितना था, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, और अब ये रिड्यूस हो गया है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो इट विल बी एक्स वाई माइनस 9। ये है नया एरिया और ये भी है नया एरिया नई लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, और ये दोनों ही एरिया आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, वी विल बी सिंप्लीफाइंग इट, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स हियर, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यहाँ ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, एक्स वाई को जब हम LHS में लाएंगे तो वो माइनस एक्स वाई हो जाएगा और एक्स वाई माइनस एक्स वाई वो कैंसिल हो जाएंगे। सो हियर वी आर डायरेक्टली कैंसिलिंग द टू टर्म्स। यहाँ से बचेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, और ये देगा हमें 3x माइनस 5y equal to 6. This is the first equation. Okay, now we have one more case. Let us move towards it. Case second. Second case में length, breadth और area तीनों देखते हैं हम। देखिए, in the second case if we increase the length by 3 and the breadth by 2, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो जो एरिया है इट इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो लेट अस राइट हियर, नाउ द लेंथ इज x यूनिट्स एट प्रेजेंट और इसको बढ़ा रहे हैं बाय 3 यूनिट्स, तो नई लेंथ हो जाएगी x प्लस 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ अभी है y यूनिट्स और इसको इंक्रीज कर रहे हैं बाय 2 यूनिट्स, तो नई ब्रेड्थ हो गई y प्लस 2 यूनिट्स, और एरिया जो हो जाएगा अब व्हाट विल इट बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये दिया हुआ है जो ओरिजिनल एरिया था हमारा वो था एक्स वाई, उससे 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया है नया एरिया। देखिए आप क्वेश्चन में दिया है द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, और वही हमने लिखा है, पहले एरिया था एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स और अब ये 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया है। नाउ दीज टू एरियाज विल बी इक्वल, ये नई लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग और ये नई कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगे। सिंप्लीफाई नाउ, यू विल गेट इट एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ पर फिर से एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये मिल गई हमें सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी नीड टू सॉल्व द टू इक्वेशंस, दिस वन हैव अ लुक 2x प्लस 3y और एक ये है 3x प्लस माइनस 5y। ओके, नाउ हैव अ लुक एट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ है 3 और यहाँ है 2, अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 6x दोनों ही इक्वेशंस में और वो इक्वल होगा। सो वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and equation 2 by 3, we get, let us multiply equation 1 by 2 first, it's 3x minus 5y equal to 6, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। ठीक है, और फिर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y इक्वल टू 3 1 3 3 6 18। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गई दोनों इक्वेशंस जिसमें x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अब आप देखिए दोनों ही सेम साइन के हैं, प्लस प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे हमें y की वैल्यू मिलेगी, इसको नंबर देते हैं इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, subtracting equation 3 from equation 4 we get, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 4, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183,
इसके बाद इक्वेशन 3 लिखेंगे जो है 6x माइनस 10y इक्वल टू 12. चेंज द साइन ऑफ बॉटम इक्वेशन. सब टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं. 6x माइनस 6x कैंसिल इट. नाउ इट्स 9 प्लस 10 इट्स 19y एंड हियर वी गेट इट 171 और ये मिल जाएगा हमें y इक्वल टू 171 अपॉन 19 and this is equal to 9. This gives us y equal to 9. 19 into 9 it's 171. y की वैल्यू हमें मिल गई. Next we need to find the value of x. So substituting y equal to 9 in equation 1 we get the first equation is 3x minus 5y equal to 6. इसमें हम y की जगह 9 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3x minus 5 into 9 equal to 6. This will give us 3x minus 45 equal to 6 और 3x equal to 6 plus 45. यहाँ से हमें मिलेगा 3x equal to 51 and x is equal to 51 upon 3. This gives us x equal to 17. ये मिल गई हमें x की वैल्यू और x और y क्या है? x is the length and y is the breadth of the rectangle और यही हमसे पूछा था. So now we can easily write the final answer. The length of the rectangle is 17 units and the breadth of the rectangle is 9 units. So this is the answer and again you can check your answer by placing these values in the equations. With this we complete exercise 3.5. Soon we will meet again. Till then practice these questions and have fun. Goodbye.